Hello students, in this lecture we want to study stereoisomerism. In last videos we have been studied about the structural isomerism, that is the chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism or tautomerism. Now today's session we want to study that is the stereoisomerism. What is meant by stereoisomerism? That is two or more compounds having a same molecular formula. Two or more compounds having a same molecular formula, same structural formula, also same functional group, but they differ in their arrangement of atoms or a groups in a space. Space बोले तो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट. स्पेस बोले तो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट. These are called a stereoisomers and the phenomenon is called a stereoisomerism. Clear? तो एग्जाम्पल लेने के बाद में आपके ख्याल में आ जाएगा. तो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, contain same functional group but they differ in their arrangement of atoms in a space. That is the three dimensional arrangement different हो सकती है. These are called a stereoisomer. So there are two types of stereoisomerism. One is called geometrical isomerism and another one is called optical isomerism. So in this session we want to study that is the geometrical isomerism. Now it is also called a cis and trans isomerism. Now what is mean by cis? Cis का मतलब in Latin that is cis means same side और trans का मतलब that is the opposite side. That is opposite side. ये होगा cis and trans का मतलब. अब उसका मीनिंग आगे देखेंगे. अब what is mean by geometrical isomerism? Two or more compounds having a same molecular formula. Two or more compounds having same molecular formula but differ, same molecular formula, same structural formula, same functional group but differ in their spatial arrangement. Spatial का मतलब थ्री डायमेंशनल arrangement of atoms or groups along a carbon-carbon double bond. This is the important point. That is carbon-carbon double bond are called geometrical isomers and the phenomenon is called a geometrical isomerism. Clear? The most essential condition is that is though what is the condition? क्या condition आएगी? The geometrical isomerism shows that compound must have a carbon-carbon double bond. उसमें double bond चाहिए तो ही वो geometric isomers बता सकते हैं. क्लियर? तो ये हो गया geometrical isomerism. एंड दूसरी कंडीशन में ऐसा लेने का कि दैट इज द एटम्स और ए ग्रुप्स आर अटैच टू द कार्बन-कार्बन double bond shows a different arrangement, shows a different types of arrangement. This is the important condition for the geometrical isomerism. The most essential condition ख्याल में रखने का that is the carbon-carbon double bond. तो this is the important condition for the geometrical isomerism. समझ में आ गया? तो two or more compounds having a same molecular formula, same structural formula, contain same functional group but they differ in their arrangement of atoms along the carbon-carbon double bond. These are called geometrical isomers. जैसा आप एग्जाम्पल लेंगे अपन. अब कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड बोले तो विच होमोलोगस सीरीज? अल्किन. कौन सी होगी? होमोलोगस सीरीज अल्किन. अब होमोलोगस सीरीज अल्किन होगी अपनी. तो पहला अल्किन कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड. अब देखेंगे इसमें कौन कौन सी अरेंजमेंट पॉसिबल है. तो पहली अरेंजमेंट कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड लिख लिया अपन ने. यह हो गया CH2 CH2. अब इसको चारों बाजू में हाइड्रोजन एटम है, कहीं पर भी ऊपर नीचे किए तो डिफरेंट अरेंजमेंट वेयर नॉट पॉसिबल. तो अगर सेम साइड में टू हाइड्रोजन एटम अगर है तो दे डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं बता सकते. दूसरा लेंगे अपन तो ये हो गया समझो इथिलीन के लिए. अब नाउ फॉर प्रोपिलीन. तो प्रोपिलीन के लिए व्हाट इज द अरेंजमेंट? क्या आ जाएगा फिर? यहाँ पर कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया अपन ने. ये CH2 हो गया. उसके बाद में एक हाइड्रोजन एटम और ये
CH3। तो ये हो गया स्पेशियल अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं अपन स्पेशियल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अगर इसको अपन ने चेंज किया समझो तो क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये H और यहां पर ये H और ये CH3 घुमा दिया। But different arrangement were not possible because of a presence of a same 2 hydrogen atom attached to the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कोई भी एक कार्बन एटम को, डबल बॉन्ड के कार्बन एटम को अगर 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है तो दे डू नॉट शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब यहां पर भी लेंगे अपन, यहां पर भी CH2 है, तो CH2 है, कार्बन कार्बन के कोई भी एक लास्ट कार्बन एटम को अगर समझो 2 हाइड्रोजन एटम है तो दे डू नॉट शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो ये हो गया 1 ब्यूटीन, या फिर कॉमनली इट इज कॉल्ड अल्फा ब्यूटिलिन, पहले नंबर के पास डबल बॉन्ड है इसलिए। क्लियर? तो इट डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये उसके बाद में का नेक्स्ट लेंगे अपन, समझो ये हो गया 2 ब्यूटीन यानी, या फिर इट इज कॉल्ड अल्फा बीटा, बीटा के पास डबल बॉन्ड है, बीटा ब्यूटिलिन। अब इसमें अरेंजमेंट देखेंगे अपन, पहली अरेंजमेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिलेक्ट किया अपन ने, फिर क्या आ गया, एक यहां पर क्या आ जाए हाइड्रोजन, इसमें क्या आ जाएगा CH3। क्लियर? यहां पर भी एक आ गया हाइड्रोजन, दूसरा आ गया CH3, एक अरेंजमेंट होगी। दूसरी अरेंजमेंट क्या पॉसिबल हो सकती है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखा अपन ने, अब कोई भी एक घुमा देने का, ये H यहाँ गया, ये CH3 यहाँ गया, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या गया H। समझ में आ गया? तो दे डिफर इन देयर पोजीशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों मिथिल ग्रुप सेम साइड में आ गए या फिर दोनों H सेम साइड में आ गए, सो इट इज कॉल्ड ए सीज आइसोमर। इफ द atoms or a groups of arrangement, similar atoms lie in a same side of a functional group, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड ए सीज आइसोमर। इसको क्या बोलेंगे अपन, सीज आइसोमर। अब इसमें सेकंड, इसमें क्या आ जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो अपोजिट के लिए कौन सा वर्ड लिया था अपन ने, ट्रांस, तो इट इज कॉल्ड ए ट्रांस आइसोमर। इसका किसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांस आइसोमर। क्लियर? सो दिस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड सीज एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो अब यहां पर ख्याल में रखने का, यहां पर अपोजिट साइड में तो रिपल्शन कम हो गया, सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नोट दैट इज द ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन सीज आइसोमर। ट्रांस आइसोमर्स मोर स्टेबल देन सीज आइसोमर। तो इसका अगर नाम लेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर इसका नाम सीज, क्या लिखोगे, सीज 2 ब्यूटीन, और इसका नाम अगर लेंगे तो क्या लिखोगे, ट्रांस 2 ब्यूटीन। इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो इट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्लियर? तो ऐसे एक एक कंपाउंड लिख के देखने का, C5 कार्बन एटम, C6 कार्बन एटम, बट इटेंशियल कंडीशन इज दैट इज दे कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब यहां पर एक 1,2 डाई ब्रोमो इथिन दिया है, इथिन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये Br हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया Br। अगर इसका अपन ने फॉर्मूला देखा तो क्या आ जाएगा, फिर ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होगा इथिन। क्लियर? तो यहाँ का एक हाइड्रोजन एटम निकाल लिया अपन ने, यहाँ पर लगाया Br, इधर का भी एक हाइड्रोजन एटम निकाल लिया, यहाँ पर लगाया Br, तो ये होगा 1,2, क्या नाम आ जाएगा इसका, फिर 1,2 डाइब्रोमो इथिन। तो ये होगा इसका एक फार्मूला। तो दोनों भी Br एटम सेम साइड में या फिर दोनों भी हाइड्रोजन एटम सेम साइड में, तो इट इज कॉल्ड ए सीज आइसोमर। दूसरा देखेंगे अब इसका, तो सेकंड फार्मूला क्या बन सकता है, तो अब यहां पर अपोजिट साइड में लेने का, क्लियर, ये या ऐसे के ऐसे, ये Br, इसको चेंज कर देने की इनकी स्पेशल अरेंजमेंट, ये हो गया Br और H, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे अपोजिट साइड में, सो इट इज कॉल्ड ए ट्रांस आइसोमर। इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांस आइसोमर। समझ में आ गया? तो ये होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो
सीज का मतलब दैट इज द सिमिलर एटम्स और ग्रुप लाई इन सेम साइड ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, सेम साइड ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सिमिलर अगर डिफरेंट साइड में, अपोजिट साइड में, डिफरेंट साइड या फिर वी कैन से अपोजिट साइड में है तो दे आर कॉल्ड ए ट्रांस आइसोमर. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड ए सीज एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म. उसके बाद में द इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट दैट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर शोज ए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. दे हैव ए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. मास हो गए, मास तो सेम रहेगा अप्रोक्सीमेटली, लेकिन उसकी डेंसिटी होगी, रिएक्टिविटी होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये डिफरेंट रहेगा. उसके बाद में दे शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो नियर अबाउट रिएक्शन सेम रहेगी लेकिन बट नॉट ए आइडेंटिकल. दिस इज द इंपॉर्टेंट. तो जब अपन अल्कीन ENE जब स्टडी करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिटेल में, तब इसके पॉइंट देख लेंगे. तो ख्याल में रखने का, दे हैव ए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे शोज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर बट नॉट ए आइडेंटिकल. नॉट ए आइडेंटिकल इसका मीनिंग देखेंगे अपन. क्लियर. तो ये होगा अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ओके.